Welcome to Nationalist Hub. Today, we have a very special guest with us. Somebody who has really traversed the entire spectrum of nationalism in its very spirit and, of course, purpose. Dr. Omendra Ratnam, an ENT surgeon from Jaipur, is with us in the Nationalist Hub studio here, and I will briefly run through a short biodata of his, which will read very interesting, but I think as we go in the conversation, we'll get more out of him as to what he does exactly. तो आज जब ओमेंद्र रत्नम जी के बारे में बात करेंगे, यही बोलना है कि he runs Nimitekan, very short, sweet name, but does a humongous amount of work. बहुत ही काम किया है फील्ड में. पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदूज हैं, उनको भारत में शरणार्थ देना और उनको सिटीजनशिप दिलाना. हम तो अभी सुन रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसका रूल्स का एनैक्टमेंट एंड ऑल, लेकिन डॉक्टर ओमेंद्र रत्नम तो सालों से यही काम कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो एन ऑथर, रिटन द बुक ऑन महाराणास, which again every Indian citizen should read to understand many misgivings in history, the history books that have been written which are not really complementary to what the bravery of the Maharanas were. Because we always heard of Akbar the Great, but we were never told that Rana Pratap was great. That is the irony of it. That's how our history books were written. But let us start the conversation with Dr. Omendra Ratnam. Dr. Omendra Ratnam, thank you for coming to our studio, sir, at Nationalist Hub. Namaste. Thank you for inviting me, Suresh Bhai. It's an honor, as always, to talk to you, and looking forward to the conversation. Talk to me when we start the conversation. Of course, I know you from quite some time now, but for the viewers of Nationalist Hub, because we keep switching between languages, और आप हिंदी में आप ज़्यादा आपका फ्लो अच्छा आता है, हिंदी अंग्रेजी भी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बट वी विल कीप स्विचिंग द कॉन्वर्जेशन मोस्टली इनटू हिंदी. तो हम जब बात करते हैं निमितेकन के बारे में और जो आप कर रहे थे इतने सालों से, यहाँ के तो प्रेक्षक किसी को पता भी नहीं होगा नेशनलिस्ट हब में कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए काम करता था. तो लेट्स टेक अस थ्रू अ बैकग्राउंड ऑफ वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट इट. सी मेरा जो पहला जो इंटरेक्शन राजस्थान में होने के कारण था, वो एक पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर दिलीप से मिलना हुआ, और उन्होंने जब मुझे बताया कि कराची के अंदर वो रहते थे और वो छोड़कर इन एज लेट एज 2004-5 की बात है, तो मैंने कहा यार 21st सेंचुरी में, पहली बात तो मुझे पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं पता नहीं था. मैंने इंक्वायर्ड कि भाई कितने हिंदू हैं, तो साहब लाखों में, पता ही नहीं कितनी गिनती है. अभी तक भी मैं कोई कॉन्क्रीट फिगर आपको नहीं दे सकता. एम्पेरिकली मैं कह सकता हूं कि लगभग 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में आज रहता है, इन स्पाइट ऑफ द जेनोसाइड. This is from a population of Pakistan would be around 25 crores. So it's about 1/4 of, no, hardly minuscule, not even 1/10 of it. Minuscule. Very, very minuscule. It's about 2%, 2 to 3%. That's it. और उसमें भी बहुत फजिंग होती है, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है. सेंसस डेटा को ये लोग पहले तो सेंसस करते ही नहीं है, फिर सेंसस करते हैं तो अपर कास्ट को, शेड्यूल कास्ट को अलग दिखाते हैं, फिर उनको नंबर्स को भी डिवैल्यू करते हैं, झूठ फजिंग करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है. दिलीप से मुझे पता चला कि हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ वहां पर इस तरह से अत्याचार होता है, और वो मतलब लोग अगर बॉर्डर खोल दिए जाए तो 1 सेकंड कोई वहां नहीं रुकेगा, सब लोग यहां आ जाएंगे. तो सुरेश भाई, इन द प्रोसेस ऑफ working with these Hindus of Pakistan, there was so much that was revealed to me. For example, I realized that the partition of this country never happened. Correct. It's a dirty joke to say that this country was partitioned. There was only a transfer of power from the Gora Sahibs to Bhura Sahibs. And in a way, these Bhura Sahibs proved to be worse than the Gora Sahibs. India became a Sharia compliant nation, and only limiting our conversation to the Hindus and Sikhs of Pakistan. कराची से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर इंटीरियर सिंध में एक हिंदू बैठा है, उसको तो पता भी नहीं कि कंट्री पार्टीशन हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अभी 2011 में एक पाकिस्तान के एक बुजुर्ग आदमी 87 साल के थे, मैं उनसे मिला हूं, उसे मुझे नहीं पता था कि देश के पार्टीशन हो चुका है. Okay. In 2011 he says this to me. And I think, Dr. Ami, just holding you there, I'm sorry interrupting you. I think Baba Sahib Ambedkar also had said that Muslims have to totally shift to Pakistan
And isn't it, correct me if I'm wrong, He said there should be a total exchange of population because the country has been partitioned on the basis of religion. this is what Dr. Baba Sahib Baba Ambedkar, Sahib Ambedkar said this. but Nehru never did it. But these Malechas, they finished the career of Baba Sahib. Defeated him twice. इन in- मलेच्छों ने तो उनका करियर ही खत्म कर दिया ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का पार्टीशन हुआ ही नहीं। भाई ये कैसा पार्टीशन हुआ कि आप स्टूडियो के उस कोने पर, मैं इस कोने पर, बीच में दीवार खींचे नहीं, बीच में एक दीवार भी रख देंगे। ये कौन सा पार्टीशन हुआ भाई? फिर वो दीवार क्यों खिंचवाई थी? and दीवार then- में से क्या हम आपके उस खिड़की में से मेरे बच्चे आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, 7 जन्म तक लड़ते रहेंगे? कौन खुश है? मतलब जो भारत के अंदर मुसलमान रह रहे हैं वो पाकिस्तान का गुणगान करते रहते हैं, जो वहां बेचारा हिंदू रह गया वो भारत का गुणगान करता रहता है। तो क्या क्या परिणाम, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला? जख्म दिल आपकी नजरों से तो गहरा निकला। Wow. इतना कष्ट, इतना पीड़ा ऑन अ सच अ ह्यूमंगस स्केल, एंड द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन हैज नॉट येट फिनिश्ड, ऑफ दिस बॉच्ड अप पार्टीशन। जो 10 लाख 20 लाख हिंदू मरे पार्टीशन के टाइम, वो तो कहानी चलो मर गए, छूट गए। फॉर द लास्ट 70 years, सुरेश भाई, this population which was about 23% at the time of partition has now dwindled down to 3%. There should be an international inquiry. Genocide? Genocide है तो, मैं तो बुक लिख रहा हूं उस पर, The Hindus and Sikhs of Pakistan, an ongoing genocide. It is ongoing right now. यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है मई 2019 की। ये कोई हिटमॉन्गर नहीं बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन एक एब्सोल्युटली न्यूट्रल इदारा। 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं, पर डे। And you put a lot of those videos out on the groups. Oh, various I get groups these which I am videos a part every of day. that. I get these videos every day. मेरी वेबसाइट पे जाइए आप, निमित्त एकम लेकिन पे। यहाँ के जो भी सेक्युलर पार्टीज है भारत देश में, वो इनके बारे में बात ही नहीं ये करते। चोर है ना। 90% ऑफ हिंदूज जो हम पाकिस्तान से निकालते हैं वो दलित समाज के हैं। भील, मेघवाल, बलाई, कोली। इस देश की दलित लीडरशिप ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया। वही तो है ना। किस मुंह से किया? तो ये तो चोरों का साम्राज्य है भाई साहब। ये तो बस समहाउ 21st सेंचुरी में बिकॉज ऑफ इंटरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होने के कारण आप जैसे प्यारे लोग, एक हमारा पूरा ग्रुप बना हुआ है जो अपना पैसा डाल करके हम इन हिंदुओं को निकालते हैं। अदरवाइज द हिंदू लीडरशिप, आपके धर्माचार्य कहाँ है? आपके मठाधीश क्या कर रहे हैं? आपकी थॉट लीडरशिप क्या कर रही है? आपकी सो कॉल्ड डेड हिंदू इंटेलिजेंसिया कहां पर है? आपके टेम्पल्स क्या कर रहे हैं? हाँ, आपके टेम्पल्स क्या कर रहे हैं? हिंदू, आपका हिंदू टेम्पल्स प्रीस्ट क्या कर रहे हैं? कोई बोलता है? पाकिस्तान के हिंदू जेनोसाइड की बात करता है क्या कोई? यहाँ भारत देश में एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है हाथरस में या और कहीं, उसको तो इतना बड़ा बैंड बाजा बजाते हैं और कि ये सारा से ऐसा इकोसिस्टम से होता है ना। थिंक जो मैं पिछले 12-13 साल में इस काम को करके सीख पाया हूं वो ये है कि मैं तो सिर्फ इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स लेता हूं। जो जहां सहायता करते हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमें बहुत रिलीफ दिया। हम पाकिस्तानी हिंदुओं को उन्होंने बैंक अकाउंट की फैसिलिटी दी, ड्राइविंग लाइसेंस की फैसिलिटी दी, लॉन्ग टर्म वीजा की जो पहले 1 साल की अवधि होती थी उसको बढ़ाकर 5 साल किया। इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी और आधार कार्ड को भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के बेसिस पर उनको अलाउ कर दिया। लेकिन पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने अपने खून का पानी करके हम उसको लेकर आए, उसको नोटिफाई नहीं किया गया था नहीं टिल किया। रिसेंटली। वो एक पूरी लॉबी है। और मैं इस्लामी लॉबी की बात नहीं कर रहा हूं। इस्लामी लॉबी तो शत्रु है ही, वो तो शाहीन बाग बना के बैठ गए थे। करेक्ट। They resisted whatever they could and they came up with such a horrifying argument, जो कि मतलब उसको बचकाना कहना भी कठिन है मेरे लिए, पर उसकी बात हम बाद में करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू भी हुआ तो ऐसा टूटा फूटा सा। तो ये पाकिस्तान के जो हिंदू है ना सुरेश भाई, दीज आर फॉरगॉटन, फोरसेकन हिंदूज, और उसका सारा ठीकरा इस हिंदू, मरे हुए हिंदू नेतृत्व के सर पर फूटता है। So just to tell our viewers a context to all this, what Dr. Omendra Ratno is saying, every day 2 to 3 girls, young Hindu girls or Sikh girls, get kidnapped
get married to elderly men. Of course, they're converted, and nobody does anything. I remember Dr. Amendru sharing copies of FIRs from Pakistan, trying to chase down that particular victim as to where she is, and quite often reaching a dead end. कुछ होता ही नहीं. एंड भारत देश में जो बैठे सेक्युलर पार्टीज जो है, एंड इवन हिंदू पार्टीज बोलते हैं, ये इनके बारे में कुछ नहीं बोलते. यही तो दिस द ट्रेजेडी ऑफ इट. डॉक्टर अमेंद्र, प्लीज कंटिन्यू. तो पाकिस्तानी हिंदुओं का जो विषय है वो इतना मार्मिक है सुरेश भाई, और मैं अपने आप को बिल्कुल नम कर चुका हूं उस पेन को. भाई 11 साल की 12 साल की बच्ची उसके घर से जबरन उठा ली गई, स्कूल जा रही थी, उठा ली, पूरा गांव उसको रेप कर रहा है, फिर फोर्सिबली उसकी शादी करा रहे हैं 65 साल के एक आदमी से, और फिर कह रहे कि जी इसने तो इस्लाम कबूल कर लिया है. अब इनमें से एक रिंकल कुमारी 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है. सुप्रीम कोर्ट का जज इफ्तिकार चौधरी ऑन रिकॉर्ड कहता है इस्लाम में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी, आई एम नेमिंग द पर्सन, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए पाकिस्तान का. अभी 3-4 साल पहले की बात है, नहीं सुषमा जी उस वक्त थी, 5 साल पहले की बात. रीना रवीना 2 बच्चियां, वो उनका बाप जो है बेचारा, उनका जो वहां पर एक नादरा कार्ड होता है, नादरा कार्ड लेके घूम रहा है कि ये 13 साल की और 16 साल की एज है. जज था अथर मिनुल्लाह, जिसका बड़ा गुणगान होता है पाकिस्तान में. सुषमा स्वराज और इन सब लोगों ने ट्वीट करके वो चीज बिल्कुल इंटरनेशनलाइज. अब इमरान खान जी ने उसके ऊपर एक कमीशन बिठा दी, जांच कमीशन का जज था ये अथर मिनुल्लाह. डॉक्टरों को पैसे खिला दिए, डॉक्टरों ने कहा नहीं ये तो 18 और 19 साल की है, एज ही चेंज कर दिया. बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ वेरी इविल सोसाइटी. एक इविल समाज है पाकिस्तान का, जहां पर हिंदू हेट्रेड स्कूल का करिकुलम में सिखाई जाती है. हिंदुओं को गंदा बताते हैं, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू रिचुअल्स को, हिंदू त्योहारों को नीचा दिखाते हैं, आए दिन हिंदुओं का अपमान करते हैं. अलग बैठने की जगह होती है, पानी का अलग पीने का गिलास होता है हिंदुओं का. तो उस समाज में एक हिंदू, पाकिस्तान में हिंदू जन्मना, इट इज ए गोइंग एट अ डिसएडवांटेज जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. और बोलते हैं कि भारत देश में मुसलमान डरे हुए हैं. नहीं, मुसलमान डरे हुए तो है, तो जो इनके लक्षण है उनसे तो डरना भी चाहिए. नहीं कहते हैं, लेकिन डरे हुए कुछ नहीं है. जब आपने इतने साल से काम करते हैं, जब पाकिस्तान से किसी भी तरह भाग के भारत देश आता है, वीजा लेके आता है, शॉर्ट टर्म वीजा लेके आता है, टूरिस्ट वीजा लेके आता है, उसको वापस रिलीजियस वीजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. उसके बाद उनको जाने का नहीं है, वापस नहीं जाने का. लेकिन वो रहते हैं राजस्थान, दिल्ली, पता नहीं हरियाणा, कहाँ टेंटों में रहते हैं ये लोग. बहुत साल से these people are staying in tents without any basic facility. Please correct me if I'm wrong. No, you're right. But you see, the point is that if you talk to any one of these Hindus, would they want to go back? There's no. We are free. We are poor here, but we are free. And we do not have to bother about the safety of our girls. एक धर्मवीर करके पाकिस्तानी समाज का बंदा था, जिसका मैंने 2013 में इंटरव्यू लिया. वो कहता है कि मैंने कहा तुमको 25 लाख रुपए दे तो तुम पाकिस्तान वापस चले जाओगे? तो बोले साहब 25 लाख या 25 करोड़ देंगे तो नहीं जाएंगे. यहां की जेल अच्छी है, वहां की जिंदगी से यहाँ की जेल अच्छी है. आपको अगर अवसर दिया जाए तो 25 लाख रुपए दे दें हम, आप तो वापस चले जाओगे? नहीं दिया जाए. हमें तो यहाँ नया जीवन मिल गया. वो तो जीवन जैसे हमारा खत्म हो गया जो वहाँ से हो गया. वहाँ बेइज्जती होती थी आपकी रोज. तो बहुत जुल्म कहा नहीं जाता, इतना जुल्म होता था. यहाँ की तो जेल अच्छी, वहाँ की आज़ादी से. यहाँ जेल में रहेंगे वो रोटी अच्छी मिलेगी. यही तो है. आई थिंक आप एक इन 21st सेंचुरी ट्रू दया धर्म की बातें करने वाले इन हिंदुओं से मैं पूछता हूं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के हिंदुओं ने तुम्हारी गाय मारी है? तुम्हारा क्या बिगड़ा है कि तुम पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रति इस तरह पीठ मोड़ के बैठे हो? एक इंटरनेशनल, आप जस्ट अपने चश्मा बदलिए सुरेश सर. अगर ये सब पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा होता तो फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं, पूरा पुकार उड़ जाता है. तो इसका मतलब हमारे अंदर भयंकर कुछ न कुछ देयर इज अ लेक्यूना कि 120 करोड़ का वैश्विक हिंदू समाज, इस पूरे समाज में मैं हुआ, जय आहूजा, आप 5-7 लोग, हम लोग आज 15 साल से भौंके चले जा रहे हैं इस इशू के ऊपर.
लोगों ने कह दिया पागल आदमी है, फिर आ गया बोलने के लिए। जीते जागते मनुष्य मारे जा रहे हैं, बच्चियां उठ रही हैं। या तो कह दो कि भाई पाकिस्तान का हिंदू जो है ना वो 5th कैटेगरी का सिटीजन है वर्ल्ड का। उसको कोई सीरिया के रिफ्यूजीज पाकिस्तान अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप पूरा इन्फिल्ट्रेटेड है, टर्की फर्की से होते हुए सारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं को रेफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं मिलता? यह प्रश्न है, क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता क्योंकि आप खुद कमजोर है। आपकी अपनी लॉबी हिंदुओं की कोई है ही नहीं। जब कश्मीरी 2017 में मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में मुझे HAF जो है उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिलवाया। टू माई अटर शॉक I was the first one talking about Pakistani Hindus in the Department of State. इस देश का जो मरा हुआ जो फॉरेन मिनिस्ट्री का तंत्र है, उन बाबुओं में तो इतनी कंपैशन भी नहीं है कि कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स के या वेस्टर्न कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बता भी सके कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में ये हो रहा है। बट फॉर द लार्जर मास ऑफ हिंदूज पाकिस्तान इज ऑन मार्स। नहीं, यही तो बात है ना, मंगल ग्रह पर है। यही है ओमी जी, शॉकिंग इस बात का भी है क्योंकि जब जूस के साथ ये हुआ था, व्हेन यू सॉ व्हाट हैपेंड विद जूस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसराइल ने तो अपना दरवाजा खोल लिया था, कहते कहीं भी वो आ जाओ वापस। केरला से गए थे बहुत सारे जूस, कोचिनी जूस कहते हैं उन्हें। ये बात यही समझ में आती कि अफगानिस्तान के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज कहते हैं या बाकी देश में परसिक्यूटेड, उनको US कनाडा हर जगह रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है। बट लेट मी ब्रिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, एक बार भारत देश में आ जाते हैं, जैसे आप जैसे लोग बहुत महान काम करें, उनको लेके आते हैं यहाँ किसी भी तरह, आने के बाद उनके साथ क्या हो रहा था टिल एटलीस्ट 2014 तक, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा था? 2014 तक तो आ ही नहीं रहे थे। वीजा कौन देता था इनको? तो बिल्कुल कोई वीजा नहीं था। तो क्या बदल गया? कुत्ते की जनात थी पाकिस्तान के हिंदू की। ये तो मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दे पुट इट इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ईसाई है, उसको हम प्रेफरेंशियल स्टेटस देंगे। और मोदी जी ने तो एक स्पीच में कहा भी था पाकिस्तान के हिंदू सिखों का घर है भारत। तो राहुल गांधी बोलता है कि आप मुसलमानों को क्यों नहीं देते पाकिस्तान? तो उसको ही बोलो कि पाकिस्तान को भारत में विलय कर दे, बांग्लादेश को विलय कर दे भारत में, तो उसके बाद हम दे देंगे। तो 47 में आपने पार्टीशन किस बेसिस पे मांगा था? रिलीजियस आप what was the basic premise? Correct. That Muslims cannot stay with Hindus. Okay, आप अपना घर अलग करो। आज आप किस मुंह से कहते हो? तुमसे बच के ही तो भाग रहे हैं भाई, मुसलमानों से बच के ही तो ये बेचारे हिंदू भाग रहे हैं अपने। किसको शौक है 21st सेंचुरी में अपना घर छोड़ने का? सर, अपना सोना, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने रिश्तेदारों के समाधियां, अपनी मेमोरीज, अपनी रूट्स, ये पार्टीशन किसको शौक है? पार्टीशन के बाद एक बार हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा हो रहा है। नहीं, दोबारा नहीं हो रहा है, ये अनसीजिंग है। हम हिंदू इतने अभागे लोग हैं कि ये 70 साल से ये ट्रॉमा चल रहा है, 75 ईयर्स। तो अमित जी, एक बार भारत देश आने के बाद, अब ठीक है 2014 के बाद ले लेंगे हम, CAA आने से पहले अगर एक पाकिस्तान से आए हुए एक हिंदू रेफ्यूजी कहेंगे उनको सिटीजनशिप लेने के लिए उनको क्या प्रोसेस था? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस उसमें रिश्वतें खाती थी। तो जिन हिंदुओं से हमारा संपर्क हो जाता है, जो हमारे माध्यम से आते हैं, हम उनको इजीली प्रोटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारा लिएजन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हम गारंटर हैं उसके कि वो कोई क्राइम नहीं करेगा, वो कोई ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं करेगा। वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब इन हजारों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने आप में एक रिस्क है, लेकिन हम वो रिस्क लेते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं को हमें बचाना है, तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। और भगवान की कृपा से पिछले 10-12 सालों में कभी किसी पाकिस्तानी हिंदू ने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जिसके लिए कि हमें क्वेश्चन किया जाए। अभी 3 महीने पहले एक गुजरात में केस हुआ है, वो एस्पियोनाज में पकड़ा गया। तो मैंने कहा, तो हमारे पास जब सूचना आई कि साहब इसको बचाओ, मैंने कहा नहीं भैया, एस्पियोनाज में कोई करेगा तो किसी को नहीं बचाएंगे हम। ही हैज टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। लार्जली हमारा काम यहां पर चलता है कम्युनिटी बेस्ड। जैसे मेघवाल पॉपुलेशन आती है सदर्न पंजाब, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से, तो हम उसको मेघवाल के पास भेज देते हैं। अच्छा। भील आते हैं हमारे पास में, तो भीलों का हमारे पास में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास में भेज देते हैं।
बनिया आता है महेश्वरी तो महेश्वरी के पास भेज देते हैं, अग्रवाल आता है तो अग्रवाल के पास भेज देते हैं, पुष्करना ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण के पास। लार्जली क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनको मकान बना के, अब हमने जमीन खरीदी है अभी रिसेंटली 6 महीने पहले, अब हम वहां पर टेम्परेरी हाउसिंग कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत सरकार ने पिछले टेन्योर में लगभग 1 वर्ष पहले इन बेचारे गरीब निरीह हिंदुओं के घर तोड़ दिए। मकानों पर बुलडोजर चलवाए थे। खैर उसका श्राप लगा, उसकी हार हुई, और हार क्या, मैं तो कहता हूं उसके साथ जो परिवार है उसके साथ भी वही होना चाहिए जो इन निरीह बेचारे हिंदुओं के साथ में हुआ। तो इसके बाद इनको जब एक बार इनको समाज में लेके आते हैं तो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन कैसा होता था सीए आने से पहले? कॉम्प्लिकेटेड, 12 साल का वेटिंग पीरियड है सर, नेचुरलाइजेशन से आपको वो करना है। राजनाथ सिंह जी ने लॉन्ग टर्म वीजा को 1 ईयर से 5 ईयर करके बहुत सुविधा दे दी, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस और अगर बैंक अकाउंट होता है तो एटलीस्ट दे कैन वर्क एज ड्राइवर्स, स्मॉल टाइम जो इनका जो तो लेबरर्स। सीए ने बेसिकली, मेरा जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसमें यह है कि दे हैव रिड्यूस द वेटिंग पीरियड, इजंट इट? दे हैव नॉट, टेक्निकली नॉट, they have not, बट एज पर द there was a talk of reducing it from 12 to 7 years, but when I got the CA in print I saw that it is nowhere in the print. What can be done? कट ऑफ डेट भी था एक कट ऑफ डेट तो बिल्कुल आर्बिट्ररी है 24। भाई, क्या लॉजिक है 31 दिसंबर 2014 के, उसके बाद के हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो, तो इट शुड बी ओपन एंडेड, इट हैज टू बी ओपन एंडेड। ओके, हमारी तो डिमांड ये थी भाई, बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी? दिस इज जस्ट एन अमेंडमेंट इन दी 1955 सिटीजनशिप एक्ट which was premised on the नेहरू लियाकत पैक्ट ऑफ 1950। तो आप एक नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में 2 मिनट बता दीजिए हमारे प्रेक्षकों को, क्या है ये? जब इस देश का धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ और टोटल एक्सचेंज नहीं हो पाया, तो इस देश के घटिया और 3rd क्लास लीडरशिप और उससे भी घटिया पाकिस्तान की लीडरशिप के इन लोगों ने दिमाग लगाया कि जी भारत के अंदर मुसलमान और पाकिस्तान के हिंदू को दोनों देशों में कन्वर्सली प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप दी जाएगी। जो हिंदू भारत जाना चाहता है उसको इंडियन गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देगी। ये नेहरू ने कहा था, नेहरू कमिटमेंट है, साइंड, कहा नहीं था, इट इज अ सॉवरेन डॉक्यूमेंट, एंड टुडे कांग्रेस इज डिनाइंग इट। वो पैक्ट में ये भी बताया गया था कि प्रोटेक्ट भी करेंगे इनको। क्या प्रोटेक्ट करेंगे? बात प्रोटेक्शन कौन मान कौन रहा है प्रोटेक्शन? आप तो उसको सिटीजनशिप दो भाई, उसको वहां से निकलना है उस नर्क से। प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ? कोई पैसे देने की बात भी हुई थी, ऐसे तो उसमें पैसे की भी बात हुई तो है। फिर सीए कहां आ गया फिर उसमें? भाई तो इस नेहरू लियाकत पैक्ट के बेसिस पर पाकिस्तान ने कहा कि हम मुसलमानों को देंगे, भारत ने कहा हम हिंदुओं को देंगे, सिखों को देंगे, हम तो सभी को देंगे वो जो हमारा था। इसके बेसिस पर 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बन गया। अब उसमें जो राइडर था वो ये था कि जो अविभाजित भारत में जन्मा हिंदू है, इन अनडिवाइडेड इंडिया में जो हिंदू जन्मा है या जिसके माँ बाप अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, उनको प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप दी जाएगी। क्योंकि इन्होंने सोचा था कि 30-40 साल में पाकिस्तान हिंदुओं से खाली हो जाएगा और भारत मुसलमानों से। ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहां से 2-1.5 करोड़ हिंदू नहीं निकले, यहां से 20 करोड़ मुसलमान नहीं निकले। तो यहां तो मुसलमान फल फूल रहे हैं, इसलिए इनको निकलने की जरूरत भी नहीं है। वहां हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो एक स्टेडी फ्लो ऑफ उनका आना जाना रहा। अब 70 साल निकलने के बाद अविभाजित भारत में जन्मा तो कोई हिंदू बचा ही नहीं है। नाउ वी आर लुकिंग एट द 3rd जनरेशन। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये राइडर हटा दें, आप इसको ओपन एंडेड करें कि जो पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन वो भारत आना चाहता है, क्योंकि वहां का समाज इस तरह का है, वहां का समाज अपनी माइनॉरिटीज को नहीं पनपने देगा, उनकी बेटी को माले गनीमत, लूट का माल समझता है। इस मानसिकता से वहां के मदरसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उसको तो नहीं चेंज कर सकते। तो कन्वर्स लॉजिक ये भी हो जाता है कि डॉक्टर ओमी जी कि पाकिस्तान में मुसलमान को क्यों मारेगा? वो भी है ना, उसके लिए हम उनको शरणार्थी नहीं देते, उनको नहीं देते भारत देश में। CA is not applicable to them. Correct me if I'm wrong. भाई मुसलमान को तो भारत में लाने का कोई, the premise of partition gets dissolved. फिर आप बॉर्डर खोल दीजिए, सब आ जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश खत्म, एक जो अखंड भारत का बना दो ना देश। तो जब नहीं, वो किला तो चाहिए
इस्लाम का किला चाहिए जहां से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा सके। साथ में ये रोना भी रोया जाएगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट में मुसलमान को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है। आई मीन इससे ज्यादा एब्सर्ड लॉजिक मेरे जीवन में मैंने नहीं सुना है। ये नहीं कि मुसलमान को सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। हमने अदनान सामी का केस देखा था। दे हैव टू वेट फॉर स्पीड अप करके मिली है। हाँ, तो वेट, एक पीरियड ऑफ वेटिंग रहता है, उसके बाद वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये नहीं कि मुसलमान, इंडियन स्टेट ही थोड़ी कह रही है कि साहब मुसलमान अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये भी छुपा के रखा था यहाँ भारत ने। यहाँ के जो पार्टी, सेक्युलर पार्टीज है, ये कभी नहीं बताया कि हाँ क्या मुसलमान कोई भी आके अप्लाई कर सकता है भारत देश में सिटीजनशिप। लेकिन एक वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद ऑफ कोर्स सिक्योरिटी क्लियरेंस और बहुत सारी चीज होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है प्रेफरेंशियल नागरिकता की बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि एक अनडिवाइडेड इंडिया था 1947 तक, तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। ये कोई हवा में एक्ट नहीं बनाया गया है। There were human beings involved in this. That is why it was passed. And मुसलमानों का इसमें कोई तुक बनता ही नहीं आने का। तो कितने सिटीजनशिप दिए गए हैं लास्ट 10 साल में ले लेंगे हम? 10 साल में मैं हमारे माध्यम से 5000 हुए, तो मैं समझता हूँ अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास नागरिकताएं हो चुकी है। और कितने लोगों को और नागरिकता मिलना है नागरिकता जो भारत देश में है अभी? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तो आपके देश में बैठे हैं और 1 करोड़ वहां बैठे हैं आने के लिए तैयार। नहीं, जो है पहले उनकी बात करेंगे। 2.5 लाख लोग अभी ऑनलाइन सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू सीए? नहीं, ऑनलाइन तो 31 दिसंबर 2014 कटिंग डेट है ना। उसके बाद जो है उनका क्या हाल है? उसके बाद कुछ नहीं, सड़क पे वही 12 साल। तो जीरो सम गेम। तो 12 साल को कम क्यों नहीं कर सकते? इनसे पूछिए जिनको जो कर सकते हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर अमित, ठीक है, हमारी तो बात ही ये हुई थी। नहीं, अब हम इसके बारे में बहुत बात करते जा सकते हैं। वी कैन गो ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स अबाउट इट, बट another fact of Dr. Omendra Ratnu, of course, he's a doctor, very, very busy doctor, ENT surgeon from Jaipur, runs his own private hospital, runs Niketam also. But more importantly, I always ask him, where does he find time for all this? He also is an author. वो किताब लिखते हैं और पता नहीं कितने किताब लिख चुके हैं अभी तक, आप बता सकते हैं। लेकिन one of his pet projects is the book on Maharanas. And I think if you read it, जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, जिसमें बहुत वर्शंस है हिस्ट्री के, डॉक्टर ओमी हैज ट्राइड टू करेक्ट इट एंड गिव द राइट पर्सपेक्टिव। और कभी कभी बात करते करते डॉक्टर ओमी इमोशनल हो जाते हैं इस बात पे। डॉक्टर ओमी, बताइए, आपके जो ऑथर का रोल है, जो सिटीजनशिप, अगर हम निमिकेतम को बाजू में रख दें उसको, तो क्या से शुरू हुआ था, क्यों लिखा था आपने किताब पहले बार? ये किताब इसलिए लिखा बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ हिस्ट्री बफ। मुझे शुरू से इतिहास का शौक था और मैं उसके बारे में अपने आप को जागरूक रखता था। मैंने एक ट्वीट पढ़ी संजय दीक्षित सर की कि द एक्चुअल बैटल ऑफ महाराणा प्रताप वाज नॉट बैटल ऑफ हल्दी घाटी एज वी हैव बीन टॉट, बट द बैटल ऑफ दिवेर 7 years आफ्टर हल्दी घाटी 1583, एंड ही राउटेड अकबर्स फोर्सेस इन विच हिज कन्फ्रंटिंग वाज सलीमा खान सुल्तान। तो वो एक तो क्या है ना कि हल्दी घाटी को इसलिए मैग्नीफाई करते हैं कि सामने हिंदू था मान सिंह, हिंदू की लड़ाई हो गई, हिंदू की लड़ाई, तो लेफ्टिस्ट को सूट करता है ये नैरेटिव। फिर झूठ प्रपंच की हल्दी घाटी प्रताप हारे थे। आई हैव गिवन 8 रीजंस बाय विच, और फिर लेटेस्ट रिसर्च के बेस पे हमने प्रूव किया है, ऑफ विच द मोस्ट ऑथेंटिक इज दैट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन जून 1576 एंड देयर आर साइंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ प्रताप गिविंग जागीर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ दोज पीपल हु हैड डाइड फाइटिंग इन हल्दी घाटी इन एंड अराउंड हल्दी घाटी of September, October and November 1576. That means he was still in charge. So if Pratap had lost, well, how was he giving these jagirs? These are all Tamrapatras, revenue records, which are the most authentic document of history documentation. लेकिन आपके इरफान हबीब और रोमिला था, इरफान हबीब को तो तकलीफ है ना, उसका अपना जो इस्लामिस्ट एजेंडा है, उसको तो बेचारे को वो तो सिद्ध करेगा ही। बट मैं एक लार्जर पिक्चर आपके सामने रखता हूं। अगर हम इस देश में जो हिंदू मुस्लिम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो आपके पास 3 हिंदू राजाओं के नाम आपको इमीडिएटली आ जाएंगे। प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। डज एनी अदर नेम कम टू योर माइंड स्ट्रेट अवे? ओनली साउथ में तो था, लेकिन साउथ में उतना इस्लामिक इम्पैक्ट नहीं था। टिप्पू सुल्तान था और उसके एक पिताजी थे। टीपू तो इस्लामिस्ट हो गया ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुओं ने जिस अपोज किया था, ट्रैवनकोर के महाराजा थे। ट्रैवनकोर
वो एक माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जो इन्वेजन हो रहे थे, मैं उसकी बात करता हूं, नॉर्थ में ज्यादा हुए थे वो। जो इस्लाम, पहला इन्वेजन अरब, फिर अफगान एंड देन टर्क, ये 3 वेव्स में आया इस्लाम भारत में। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण कब हुआ? 712 ऑर्गेनाइज्ड। चालू तो 7th सेंचुरी में हो गया था, बट 712 AD मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड राजा दाहिर ऑफ सिंध, beheaded him, and then sent his head to his Khalifa Hajjaj bin Yusuf and 2 daughters, Surya Devi and Parimala Devi, as sex slaves. That was the first attack. First Islamic attack on Bharat happens in the 8th century. आप प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जानते हैं, who happened in the 17th century. Does the Hindu Samaj even know the names of the greatest of the great Hindu kings who protected this land from 8th century to 17th century? हमारी Do you understand the scale of lies we have been told, Suresh bhai? हिस्ट्री बुक्स में है The नहीं। blackout of 700-800 years of history. ललितादित्य मुक्तापीड़, बापा रावल, रावल खुमान, Ahoms came after Aurangzeb. I'm talking about 7th century. 7th century में ललितादित्य, बापा रावल, खुमान, शक्ति कुमार, रावल अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, the Shahiya dynasty, Anandpal, Tilurchandpal, Bhimpal, Nagabhatt, or Pratyahara dynasty, Mool Raja, Chalukya dynasty, who defeated this Gauri in 1178, Nayaki Devi. Has anybody even heard these names? ये तो ट्रेजेडी है ना। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा हमीर, महाराणा रायमल. Because Our eyes open in the 17th, 16th century when Pratap is fighting this. By that time, Islam had penetrated and taken root, settled itself in the various pockets. But for 800 years, Hindus resisted Islam, and British historian Ian Austen writes in his book, but for the Islamic defeat at the hand of Hindus, India would have been an Islamic nation. no, the world would have been Islamized. That It is the thesis of that man, his historian, who says that had Hindus been defeated in Bharatvarsha, the entire globe would have been Islamized. Egypt was not an Islamic nation. Sorry? Iran was not an Islamic nation. No, but all it took have them 20 years. They finished. That's what I mean. Listening to Dr. Omi is like listening to a history class which we never heard in our childhood, we never heard in our school. And that is what all children should do, because parents today are so busy that they don't talk about history. And we are told, as I said at the start, that Akbar is great. We are all shown movies like Jodha Akbar and said, oh, wow, look at this. So handsome and so pretty. And this is all ridiculous. Carry on, Doctor. The man Akbar murdered 40,000 Hindus in one day. And he's called Akbar the Great. 25th of February 1568, the third Saka Jauhar. And this is not another hate monger saying, I'm quoting Al-Baruni, Nizamuddin Bakshi, Badayuni, and the official history keepers of Akbar himself who have given these numbers. And in the 10th chapter of the book Maharanas, I have detailed every murder, everything that he did to these Hindus. And I will share we are a cursed people. Yeah, Suresh bhai, we are a cursed people that we are worshipping and eulogizing the murderer of our forefathers. जिसके नाम पर हमको थूकना चाहिए, उस हत्यारे का चरण चुंबन करता है ये समाज, अपने बच्चों को अकबर महान करके पढ़ाता है. इससे बड़ा व्यभिचार उसको तो आप अपने साथ कर नहीं सकते. सेक्युलर बना दिया था उसको, अकबर को तो पूरा, कि उसने एक अलग रिलीजन शुरू किया था. फतेहपुर सीकरी जाइए, देखिए वो क्या है. उसके पापों पर पर्दा कैसे डालते हैं, ये झूठ खड़ा करके डालते हैं ना. और मूर्ख हिंदू तैयार है झूठ लॉलीपॉप चूसने के लिए. मैं कहता हूं सर्कसी हिंदू, वी जस्ट लव द सर्कस. आप हमको सर्कस दिखाते रहो, फिर आप हमारी हिस्ट्री ले लो, आप हमारी संपत्ति ले लो, आप हमारी फैक्ट्री ले लो, आप हमारी बेटी भी ले लो. पाकिस्तान में हो रहा है, सब कुछ ले लो, सर्कस. आईपीएल दिखाते रहो. इनफैक्ट क्रिकेट का गेम नहीं रुकना चाहिए. बहुत सट्टा कब खेलेंगे फिर.
In the और YouTube, बॉलीवुड की जो मूवी है वो चलने दो, बाकी तो ये बेटी बेटी क्या चीज है, बेटी तो और पैदा कर लेंगे। in the YouTube पड़ोस की बेटी को अपनी मान in the लेंगे। YouTube description of this video, we will share the link for Dr. Omendra Ratna's book, and you should buy and read it. I'm not saying that it will kind of give you a complete overview of the history, but you will really learn what history was all about. जब हम हल्दी घाटी की बात करते हैं तो मैं तो 2 बार जा चुका हूँ हल्दी घाटी और चेतक स्मारक वहाँ। You stand and people don't even realize, many people from down south don't, why, what is Haldi Ghati all about, till you poke the mud and see the color of the mud. Oh yes. How does it become turmeric color? Yeah. So when you talk of the history of Rajasthan, because that is one state, I mean that time it was a region, so-called region, but there's so many conspiracy theories saying that some of the Rajas of Rajasthan collaborated with the Islamists and ditched the Hindus. Uska koi, is there any justification or is there any correction? Utter nonsense. I just now told you that 800 years of history has been blacked out. Now, the first alliance of Rajput with Mughals happens in 1556. Okay. The first Islamic attack happens in the 8th century. What was happening here for 800 years? Blank. The grandfather of Pratap, Maharana Sanga, raises an army of 2 lakh Hindus against Babur in 16 March 1527 Battle of Khanwa. Who was fighting alongside him? The Rajputs of Jaipur, led by Prithviraj Kachawa. The Rajputs of Jodhpur, led by Rao Ganga. The Rajputs of Rai Sen and Chanderi, led by Medini Rai. But we only know about Jaychand. So Jaychand, it's a fallacy. Jaychand was never a traitor. That's what we are told. It's a bloody humongous lie. But coming back to the allegation that Rajputs never aligned with Muslims. For me, you see, and if you can educate me otherwise, the only evidence of alliance is if Rajputs had converted to Islam. That is not there. For 800 years, the Jaipur Rajputs, the Jodhpur Rajputs and the Mewar Rajputs, of course led by the Mewar Rajputs, because Mewar was the primary confederation at the time. So the Rajput confederation was always under Mewar. Jaipur, Jodhpur and these Bundi, Kota, Eider, all the Baswada, they used to give taxes to Mewar because Mewar was Maharana for 800 years. And did one Maharana surrender to Islam? That is the title of my book, 1,000-year war for Dharma. Now, you can cherry pick Bharmal, who compromised first 1556, who makes an alliance with Mughals. He was tormented by local Muslim population and he said, let there be a Muslim army to save me, because Jaipur, unlike Mewar, did not have Aravalli to protect it. Jaipur is on plains. Any simple army can simply just walk in. 1527, Khanwa, Rajputs had seen the devastation that firepower can bring. Rajputs had no firepower. Now call it lack of research, whatever. We didn't have it. What would the Kachawa Rajputs do to save the Hindus of Jaipur, except for compromising? And there are at least 4 or 5 incidents, 2 of them I've quoted in my book, when Man Singh Ji, Jaipur's king, was fighting Maharana Pratap, does not send help to the fighting Muslims, turns his back and lets Pratap win, especially Battle of Mohi in 1578. In fact, Dr. Omi, I mean, one goes and stands at the Kumbhalgarh fort. I mean, the feeling is awesome. The people don't even know that we talk of the Great Wall of China, but the second biggest wall is in India. And built in 1540. And what kind of technology to carry those huge stones up there and build a... कैसे लेकर गए होंगे boss? कैसे बनाया होगा? I mean, Rajasthan is full of... And this man was fighting wars with 3 Islamic sultanates at the same time. कुंभा उस वक्त मालवा का खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन और नागौर का शम्स खान, तीनों से साइमल्टेनियसली लड़ते हैं. 56 युद्ध होते हैं
एक में भी पराजित नहीं होते हैं कुंभा, और फिर विजय स्तंभ बनाते हैं और कुंभलगढ़ का किला बनाते हैं. ये वाज अ जीनियस. In आरसी fact, मजुमदार लिखते हैं उसके लिए कि कुंभा वाज अ किंग ऑफ कैटेगरी ऑफ चंद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन, एंड नोबडी नो. हमारी हिस्ट्री में कुंभा का नाम मेंशन नहीं होता सर. I think what Dr. Omi is doing is, of course, there are many other people who are also writing history books. We've seen Dr. Vikram Sampath, we've seen Manoshi, all others writing books on correcting history. There's a queen which I always talk about down south at a region near Mangalore called Ullal, where Rani Abbaka, her name is never mentioned in the history books, but she overran 2 garrisons of the Portuguese, defeated them, and then, of course, later was killed in a battle. But her name is never except in few history books in the coastal areas of Karnataka. Just 2 statues, one in Ullal and one in Bangalore. But I think, Dr. Omi, as we close this conversation, how do you think, or why do you think that Indira Gandhi or Nehru allowed these leftist historians a free run? And how much time do you think these kind of stories will take to reach, say, the CBSE books? Because these are to first be taught to the school children. क्योंकि हाँ, अगर छू भी लेते हैं उसको, सीबीएसई का हिस्ट्री बुक खत्म, सेक्युलर हो, ये कम्युनल हो गया, हिंदू देश बना रहे हैं, all these acquisitions come. But do you think a time has come now for our history books? Of course, there is a committee that is sitting on it. But do you think that more needs to be done? You asked me the reason why Indira Gandhi and Nehru allowed it, because they were all crypto Muslims. At least that is how I see their approach. Nehru, there is a statement of his doing circles on the social media. I don't know whether it's true or not, because I haven't tested the historical veracity, where he says that by practice I am a Christian and by belief I am a Muslim. Rahul Gandhi says the same thing. Huh? Rahul Gandhi says the same thing. Yeah, but I'm a Hindu only by an accident of birth. Rahul Gandhi has no face to say this. Rahul Gandhi is not a Hindu, sir. No, I'm just saying. By what standard is he a Hindu? How is he a Hindu? Please, by lineage, by practice. So forgive me that. Nehru was an enemy of Hindus. And that is the reason he put people like the madrasa educated Maulana Azad as the education minister. First education Now minister. Muslims, when they stayed back in this country, bartered their power, saying that, look, our election, we are the victims, the whole victimhood narrative. Please make us the education minister. The Hindus never realized that you are giving such a critical and crucial ministry to these zombies. So they gave it to him, and the result is in front of you. And it didn't stop with Madrasa Azad. It continued with MC Chagla, Nurul Hassan, Bakruddin Ali Ahmed. These jokers were our education ministers. So the one consequence of that is that the history writing of this country, instead of being a saga of uninterrupted defeat of Islamic invaders at the hand of Hindus, ended up being a history of rapists and murderers plundering India throughout. That is the long and short of it. That Dr. Omi is pretty disturbing when you listen to the stories. I wish I could go on for hours, but I know you have a tight schedule that you're in Hyderabad. But next time you're here, we will have a longer conversation, maybe with a public audience. You keep addressing a lot of people. Actually, yesterday you were in Hyderabad. I'm looking forward to it. I'll yes, come again. Because people in Bharatvash have this fancy idea that we would like to be ruled again. We see that quite often coming out in statements, but they don't realize what history we have gone through. What Akbar did, what Babur did, what Shah Jahan did, Oh my God. what Aurangzeb did. Even Aurangzeb has a connection to Hyderabad because he conquered the Golconda fort here through deceit, of course. He could never do it directly. So that history, as parents, you should teach your children. Don't say that we don't know. Pick up the book of Dr. Omendra Ratnam, and not just him. There are hundreds of other books. We'll share the link of his book, as I said. Also Niviketan's link where you can make donations for resettling hundreds and thousands of Hindu refugees from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. It is the best thing that you could have done in your lifetime. Dr. Omendra Ratnam, thank you for coming to our studios and speaking to us. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, आपने इन भुलाए हुए निरीह हिंदुओं की बात सुनी. मैं हृदय से आपका आभारी हूँ. Ladies and gentlemen, that was Dr. Omendra Ratnam, an ENT surgeon who dabbles in many things and of course saving lives of hundreds and thousands, as I said,
through his NGO, the Niketan. And of course, his team of volunteers, very, very dedicated volunteers who've been doing this for decades now. Do support them, and of course, bring back our Hindus and Sikhs and Parsis and Jains and Christians back home. Thank you for watching. Jai Hind.